Hello, good evening, everyone. Here we are with another session. Let's just quickly go through the disclaimer and go towards the market profile. Today, we have already done one class in market profile, so I'm gonna pick it right from there where we left with a little bit of revision. And before we do that, just let me know if you can hear my voice and see my screen. If yes, then I'll go forward. Well, great. With that note of confirmation, let's quickly go through the disclaimer and then we start our session for today. So, derivative markets are risky trades, it's a risky asset, and one should definitely consult their financial advisor before making any sort of investment or trading activity. And I am not a registered financial broker or analyst. So these classes that I'm sharing is just completely for information and learning basis. And everything that I'm sharing here, it's also not created by me. It's just a collection of concepts, observation, and experience of some of great traders of their time. And I have not created anything new here. I'm just playing a part of choosing the right information that suits me and compile them together to make something useful for myself. And I hope you can do the same thing for yourself as well to be a successful trader later on. Well, with that out of the way, let's just quickly go to the part where we're going to start our session with market profile charts. And here we are on market profile charts. As you can see on the sides, before I'm going to go to it, I'll give you a little bit idea because it's very important for me to get a certain sort of feedback that where have the people reach in terms of their information so that when I start these charts, market profile charts, then it should not become something completely like alien figures. Because when you have a little bit understanding of normal basic charts of candlestick patterns and candlesticks, and you can understand certain breakdown of bigger time frame candles to a smaller time frame candles, then these charts can still be a little bit then would be easier to understand. I'm not saying that one cannot start from here. Everyone can start from whichever point they want to start, but it's always useful to understand some basics first to come to something a little bit more complex, which is market profile. So it's not complex, but still. All right. So just to make it easy, this is actually a Bank Nifty chart that I have pulled here. And what does it show actually? I'll break it down. If you remember from the previous classes that we had, you'll remember that we were talking about market profile chart in terms of the volume is attached to the center part usually, the heavy section that you can see here. Let me just mark it for you once. Give me a second, guys. Yeah. So as you can see, there are there are no candles here. There are just these alphabets written. So why these charts are different that way? Because these were created by, you can say, a lack of informational technical grounds. Hello, Vishal. So we did not have volume data available back in those days, and some of those two traders, you know, Peter Sedelmeier and Mr. Dalton, James Dalton, they come up with this idea because whatever information they could get, they got the idea that if they can, you know, put
whatever information they have. They were getting information for every half an hour from the market. Right now, we get all the data like open interest, volume, price, and everything uh, on a tick basis because information technology is, you know, now very much advanced, better than those times of back in those days. So these people did not have those tools that time, and now when they did not have, they come up with the idea of marking the price in every half an hour and denoting it with the alphabet. And they use the alphabet like A to, whichever letter their market's gonna continue. For our market, it finishes towards M. By the time it's M, they reach to M. Our market finishes at 3:30, so like a 6-hour market. For longer R markets, the alphabets carry on and they place later on double alphabets as well. All right, that is then we're going to go to some continuous charts like crude oil or some forex charts if you want to go. Then those charts will be continuous and those then charting would be also different. And some people, like some countries, have double sessions like overnight sessions and then the main session. Then that's why as well there are different charts. But in our Indian charts, they have just only one session, which is you definitely have pre-open and then the market opens up. And after once it's open, then the whole segment does not take a break in between and it finishes till 3:30. That's why it's a chart of 6 hours. And if you're going to break it down into half an hour candles, then they're going to be like just 12 half an hour candles. So that's why we have finished the chart till N character because that's the 12th character. Okay, so let me just draw something for you so that it's going to be a little easier, I think, than that ways. And I've already done one building block structure somewhere in the middle, maybe some 12th class of market profile. Yes, that class that I started, but then I had to, not continue that one because I realized that so many people have still challenges with basic structure of uh, charts right now. So if I start market profile right now, it's going to be a little bit too much. So, but by now I think people have some understanding of how the candlesticks are working, and now we can gradually upgrade ourselves or maybe you know update ourselves towards the market profile charts. So that's why we're gonna start today. And before we're gonna do that, let me just show you how the candlestick chart gonna look like. So this is a candlestick chart for today's and yesterday's day. If you see, then yeah, here, okay, perfect. So if you see these charts, we had seen that market had, first of all, just show you what's been happening here. What's been happening here is, let me just give you a little context, like what's been happening in the markets, and then you'll be able to understand it better. And Nifty and Bank Nifty, because they are usually in sync, so that's why we should be taking them all together. So let's just see first of all Nifty, what's happening in Nifty. And what were we talking about all these days? We were talking about, we spoke about basically this day, if you remember. The day this happened, we said this is the first sign collected information from the volume that there was a bigger volume and smaller, effort versus result was less. There are chances that the market gonna go down and then market actually went gap down and continued its journey towards all the way down here because we were talking about this clean area to be covered and that area got covered by a clean swap. So that we have already spoken on this day only. The last 4 days, like we've spoken about this on maybe this was a Friday. Yeah, today is Tuesday, Monday, Friday, Thursday. We've spoken about it on Thursday that these are the scenarios that can play in the market and you should just if that happens, then very much chances that market might go all the way down to find the buyers, and buyers might gonna find them, like they're gonna might find buyers maybe at this level. That's first, and if not there, then that's the place where they're gonna come all the way, and this is where it's trying to reach in upcoming days. With some sort of consolidation at the top first, and then over here we're gonna get to see what activity they're gonna perform with these levels. So this is the market view.
market has taken this big correction starting from this day. The same thing had happened then in Bank Nifty as well. But Bank Nifty, as usual, was already has shown some little bit the sign of going down. So it did not show the first top reversal from here to all the way down. You know, it was already had gone into some sort of shorter version of. Let me just show you here. This is this is Bank Nifty chart. Now what you see on Bank Nifty is this was the day when in Nifty market made the all-time high, and Bank Nifty was already had gone below and taken a pullback and was resisting. So we were talking about this day that if Nifty goes down, then Bank Nifty also going to go down, and it also has some sort of like a clear area of this side. So if Nifty goes down, which is this day, then Bank Nifty also has the good length to cover all the way here. Of course these are the first few points, but then this is the cleaner area. Then if it has to now go into some sort of range for a long time, it might just try to find some resistance, like some support here, some action, some failure to go up would carry on later on to go down, something like that. So this was our idea, that what was market was doing. Now from there, let's just go back to what we are doing now. So we have to come back to the charts of market profile, and let's see how market profile can add information to this whole new set of information. So market has been coming down, we've seen that, and now when we see that, then we have to see one more thing, which is that this is the day when market is coming down, and this was the yesterday's day till here, and this is today's day till here. So if you see, market has I don't know if you're able to see the wicks of this chart. Let me just change the color so that it's gonna be a little bit more visible to you guys. Yeah, just give me a second. I hope it will help in some ways. Let me see. Yeah, no, it's gonna be better. I hope this is going to be now visible. Yes, as you can see that this is the market's top here yesterday. Here was the top of the market, the high point yesterday, and this is the low of the market. Then today market just opened up and tried to reach to this high. It opened up here and gone all the way down here and try to just end up here. Now we know that, now as we've seen and we've spoken about the bigger picture. The bigger picture is to go down only. We've understood that. Market might just tomorrow go gap down and start fulfilling its destiny. That we know. But we know this thing as well, that market sometimes when it's too obvious don't move in that direction. So what we have to do is we have to just always once the day is finished, we just have to again wrap up everything and just wait for the next day to reveal itself. And then if there are opportunities, then go with the same trend, whichever is trend is active. So a bigger picture is of course this side where the correction is happening, but because bigger than that, the picture is upside because it's a uptrend, and then this is sort of like a pullback wherever it's going to find its support. Now whether it has found the support or not will be now decided by market profile. So what I want you to guys to just focus on is just these 2 days that I have created these two blocks, and these two blocks are showing these 2 days activity. Now we need to see where is the most volume attached, where is the most of the, if there is some sort of like a we can see smart money activity, and we have seen that smart money needs to have some time to accumulate their position so that they can then make some move. And of course, we are in a move right now at a smaller time frame. If we're going to say like a daily time frame or a weekly time frame, we are in a correction zone. But on a monthly time frame, it's a very big uptrend, which has just given a like a pullback now. Now, there are only two things that happen once there is a pullback: either a continuation or maybe some sort of rejection at the same time and ending up into some sort of consolidation that can be later on considered as a distribution if it falls down later on, or if it goes up, then it's going to be a
accumulation for this particular trend to go active. I completely go back again to these basics so that you know what is the bigger picture. So the bigger picture is that this is a pullback. Now this pullback might at any point of time would get a point where the buyers gonna get revealed and push the price again up higher. And if they fail to create a new high, if they fail to create a new high, then the first possibility is to get into a consolidation. And if that even gets even bad, then worse is that they continue in the even lower direction. That is the third case. Third case does not work out ekdam se. It's not like the market is in a very big trend, monthly trend up, and suddenly market is in a monthly trend down. Usually that never happens. What happens is market is in a very big trend up, even if it goes for some sort of pullback, that continues to go up, and if it does not continue to go up, it ends up going into some sort of sideways activity, some sort of weak highs, and then some sort of falling and making lower points, and the whole consolidation of the whole part will be the distribution of all that movement जो मार्केट ऊपर आया था फिर किसी पर्टिकुलर एक दिन कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ चाहे वो वॉर की न्यूज़ हो चाहे इकोनॉमिक पॉइंट की न्यूज़ हो चाहे कोई पैंडेमिक न्यूज़ हो that would take the market, and with that thing market will go down, and then the new cycle will again start and then take the markets up. That is in a bigger time frame. Now I'll take this off, and I'll just want you to focus on these 2 days. So what I'm expecting of course continuation of the down move because it's a pullback, but down move is sort of, if you can see, is becoming a little bit, for down move, it's becoming a little bit on the sideways. It did not show continuation. If I put a daily chart, so आप कहेंगे कि why I'm not talking about market profile right now, why we are thinking कि what's gonna happen in the market, but I'm here to teach you market profile with the context of what's happening in the market as well right now. So I'll just try and show you what's happening on a daily chart so that you understand that what is happening, that this is the daily chart. Market was in a trend up high. Sorry. Yeah, yeah. This is a big daily chart, and market was in a higher trend. If you see, it was just making a higher high and higher low. Some point of time, it has just broken down around the time of elections, one pullback, and then continued in its own direction, and try to find out some area of interest, which is support, where it's trying to find its support here. Now the point is, when it was going down like this, and it's making a lower lows, lower highs, and it's reaching to some sort of point of interest, which was earlier resistance broken becomes support, and now they're finding the support here on these lows. And what can be expected is that expected action should be another extension of this range to the downside first, then failure to go forward, and then some sort of reversal in some point of time to find out the resistance at this point. And then if that does not work out, then it try to find out resistance here. If that does not work out and it comes back again, then it's a continuation of the uptrend. That happens. So now in this whole journey, what will happen? I need to see the failure of either buyers or sellers. So first of all, this is a very healthy thing that is happening. This is a very healthy thing that is happening. This is also a very healthy thing that is happening, but you have to see that this sort of reaction that is happening in the market is the biggest in the previous आप previous किसी भी swing को देखेंगे तो कोई भी swing इतना बड़ा नहीं है जिसमें खुद अंदर इतने swings आ चुके हैं. Every pullback is just one straight swing down. Every pullback is just one straight swing down. Over here only we had gone into one straight down but try to go up. One straight down but try to go up. One straight down and gonna try to go up again maybe and start getting filled. So this is a bigger swing. This is a bigger swing, a bigger range that market is trying to get into. So what happens here is we need to see when market gonna go to these points. Let me just clear out the diagram now. When market gonna go to these points of interest, which is here, right? What happens afterwards?
If it continues up, it's a healthy trend continuation. If it goes down, it's still healthy for a pullback because it's trying to go and find bias towards lower side, which is also fine. That is also not bad. It can go there without any problem, right? It can just extend the range of this whole thing. So these both the things are healthy. Still, for the longer time frame, this is a healthier option. Um, this is a healthier option. This is the option when I see the market can now make a range and can now go into this range only, up and down for a longer time. Now, what is unexpected is the unexpected thing is that if market is trying to go here for the first time of the journey, it should find some resistance and should pull down. That is the first expected behavior. If this does not happen, then we have to see unexpected behavior. If this is expected behavior, this does not happen, then we have to see unexpected behavior like a consolidation. So what we need to see is every time we have to have some expected and some unexpected behavior. Now over here the expected behavior is that we have reached towards the support. There should be some sort of a pullback. So at a smaller टाइम फ्रेम आपको कोई भी लिक्विडिटी का एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे या वीकनेस दिखाई दे इस डाउन ट्रेंड में तो वो एक पुल बैक का इशारा होगा और वो इशारा कहाँ पे दिखा है वो इशारा यहाँ पे दिखा है कि जब मार्केट नीचे गिरते हुए आ चुकी है आपने क्लोज दे दिया है नीचे उसके बाद भी जो दूसरी कैंडल है has just taken the liquid key and just stayed sort of like a inside candle. Like I'm not gonna say completely inside, but it just looked below, but did not give any range extension or like a follow through or continuation of the downtrend. Sort of gone into a sideways here, which is that means the people from other sides are trying to now support the price. Otherwise, it would have gone continuation. Now that is the next date yet to be you know to be seen. अगर वो नेक्स्ट डे दोबारा से मार्केट ओपन होती है यहाँ पे और हम नीचे चले जाते हैं then these buys are already gone and they certainly then go for this area. That is a good thing for down move because then we know that there is a bigger range to be played in the fact. But अगर ये चीज़ हुई है तो ये फेलियर है एक तरह से अभी सेलर्स का क्योंकि उन्हें एक्टिविटी मिल चुकी है और अगर नेक्स्ट डे दोबारा से वापस इसी रेंज में कहीं ओपन होता है और नीचे नहीं ओपन होता है तो देर आर चांसेस कोई भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर जहाँ पे वीकनेस आए जहाँ पे फेलियर ऑफ सेलर्स दिखाई दे तो मार्केट वो पूरी लिक्विडिटी जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखाई देगी उसको ग्रैब करने के लिए ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के लिए उसे जो जो रेजिस्टेंस मिलेंगे रास्ते में वो वहाँ पे जाके जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे जाके कोई रिएक्शन दिखाएगी और फिर कंटिन्यू करेगी अपनी जर्नी दोबारा से नीचे अगर उसे एक डीपर पुल बैक देना है या फिर कंटिन्यू करेगी अपनी जर्नी ऊपर अगर उसका पुल बैक खत्म हो चुका है और उसे कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड करना है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। हाँ ये चीज़ें अब हमें मार्केट प्रोफाइल से देखनी होगी तो हम अपना फोकस करेंगे सिर्फ इन दो दिनों में कि लास्ट डेज 2 डेज में क्या हो रहा है। अब लास्ट 2 डेज में क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम इसी चार्ट्स को बिल्कुल वापस आकर के मार्केट प्रोफाइल का चार्ट होता है हाफ एन आवर पे 30 मिनट्स में क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले भी हम 30 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं तो यू गो एंड मेक अ 30 मिनट चार्ट एंड 30 मिनट चार्ट शोज यू दीज थिंग्स but these are the 2 days that we are talking about. Let me just mark it for you. This is day 1 मतलब yesterday ठीक है so draw like this and this is today. Now what we can see from here is from candlesticks we get to see of course कि price हमारा जो है वो एक स्विंग लेकर के एक तरह से लोअर साइड जा रहा है तो आप एक हाई लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहे हो बट इस बार का जो लोअर लो है वो थोड़ा सा छोटा रह गया प्रोवाइडेड कि नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन ना हो अगर नेक्स्ट डे इसी तरह से कोई गैप डाउन होगा तो वो लो नया नीचे की तरफ बन जाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर नेक्स्ट डे इसी रेंज के अंदर कहीं यहाँ पे ओपन होता है that we open somewhere here. We go down first, try to test to go down and fail to do that. If we fail to break this below this wick of this test, या हम इसे सिर्फ एक बार टच करके वापस ऊपर फास्ट रिएक्शन देते हुए ऊपर आ जाए सो नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जाते हुए दोबारा से वापस नीचे ना जा पाए then everything will be taken as a reversal and because tomorrow is an expiry there are chances कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं towards the end of the day. So I'm not predicting the market, and we don't have to go in the sense of predicting the market, but we have to see what are the possibilities. As I said, the first right possibility is because this is a downtrend, market should go gap down only and continue its journey to the downside.
But if that does not happen, and if market opens up here, second case, first case, if market opens up here, because if this happen, first case, देन जो भी मार्केट का जो अभी तक बना ही नहीं है स्ट्रक्चर, उसके बारे में क्या बात करेंगे। तो जब स्ट्रक्चर बनेगा तब इंट्राडे में आप बात कर सकते हैं। बट जब अगर ये केस होगा तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट साइड में एरिया है, तो हम इसे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे पहला फेलियर तो ओपन होने का मतलब ही ये है कि सेलर्स का पहला फेलियर तो यही था कि उनकी साइडवेज जो हो गई है थोड़ी सी ट्रेडिंग एक्टिविटी। सेकंड फेलियर ये हो जाएगा कि दोबारा से थर्ड डे में भी आप यहीं पे ओपन हो रहे हो इसी साइडवेज एक्शन में। और इस साइडवेज एक्शन में अगर ओपन हो रहे हो तो इसमें कुछ एचवीएम्स बने हैं, कुछ वॉल्यूम नोड्स हैं। अगर आप उन वॉल्यूम नोड्स के नीचे जाकर ट्रेड नहीं कर पाते या नीचे जाकर सिर्फ रिजेक्शन लेके ऊपर आ जाते हो, तो आप ऊपर की जर्नी शुरू कर दोगे। फिर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, हर एक इन कैंडल्स के हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी है वो किसी भी टाइम पे ट्रैक हो सकती है अगर मार्केट अपने उस इंट्राडे सेक्शन के वीक हैक से यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ऊपर चला गया। आई नो कुछ चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस नहीं करी है, यू विल बी लाइक व्हाट इज दैट, बट मेरे ख्याल से आपको मैंने डिस्कस करी है। आई डोंट नो, आई विल चेक दैट एज वेल, दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर फॉर 5 मिनट्स। बट द आइडिया इज कि अगर हमारा ये केस होता है तो हम ऊपर जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें पता हो कि हम किसी एक एच से नीचे जाने में फेल हो गए। वो एच कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका मार्केट प्रोफाइल से। तो उस चीज़ के लिए हमें अब इन जगहों पे मार्केट प्रोफाइल से ये देखना है कि मार्केट में वॉल्यूम कहाँ पे अटैच हुआ है, अदरवाइज कैंडल से तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमारा मार्केट प्रोफाइल का यूज़ क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि आप ध्यान से देख पाएँ कि मार्केट प्रोफाइल चार्ट प्लॉट कैसे किया जाएगा। ये आपको प्लॉट करना नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आपको जस्ट बटन दबाना है, मार्केट चार्ट प्लॉट हो जाएगा। बट आई रियली वांट यू टू नो कि मार्केट प्रोफाइल चार्ट वर्क कैसे करता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट करते हुए इस पर्टिकुलर चीज़ को खुद ड्रॉ करूँगा बजाय सिर्फ कोई एक बटन प्रेस करने के। बिकॉज देन इट्स ईजी, आई कैन जस्ट प्रेस अ बटन और मार्केट प्रोफाइल चार्ट यहाँ पे अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। लेट मी जस्ट डू दैट एज वेल टू यू। दिस इज दीज आर द 2 days एंड इफ वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये आपको पता ही होगा कि ये नीचे आपका वॉल्यूम है, यस। तो ये हमारे सारी वॉल्यूम कैंडल्स हैं हर एक आवर पे कि उस पर्टिकुलर आवर पे क्या हो रहा है। और आप हमेशा देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द डे में जब भी डे का स्टार्ट होता है तो उस टाइम का जो वॉल्यूम होता है ना हमेशा सबसे ऊपर ही होता है। दिस इज द स्टार्टिंग फर्स्ट कैंडल, इसमें वॉल्यूम बहुत ऊपर होता है और ज़्यादातर दिस इज ऑल्सो द स्टार्टिंग ऑफ द डे कैंडल। Usually it's high volume activity towards the starting and the end of the session. Usually starting of the session तो definitely होती है, बट इससे हमें कोई पॉइंट नहीं। बट हम बात कर रहे थे कि ये वॉल्यूम है, ये कैंडल्स हैं, ये हाफ ऑफ आवर की कैंडल है, ये प्रीवियस डे था यहाँ तक और ये नेक्स्ट डे मैंने आज का डे था यहाँ तक। नाउ एवरी कैंडल दैट यू सी हियर, इफ आई हैव टू जस्ट यू नो मेक अ पॉइंट ऑफ कि ये कैंडल कहाँ से ओपन हुई, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई और इसने अपनी पूरी जर्नी अप एंड डाउन इतने कर ली। तो अगर इस अप एंड डाउन जर्नी को मैं किसी अल्फ़ाबेट से शो करना चाहूँ और मैं कहूँ कि एवरी 10 पॉइंट्स जो मार्केट मूव करेगी तो मैं एक अल्फ़ाबेट बना दूंगा। तो अगर 10 पॉइंट और मूव कर जाए तो मार्केट मान लीजिए यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, 0 से तो नहीं हो रहा, ऑफकोर्स उसका कोई प्राइस है जिससे वो शुरू हो रहा है, बट टू मेक थिंग्स ईजियर ये मान लीजिए 50,700 पे है, 50,700 पे मार्केट स्टार्ट हुआ तो 50,710 पे आते ही 10 को क्रॉस करते ही मैं नेक्स्ट लेटर बना दूंगा और 20 को क्रॉस करते ही मैं नेक्स्ट लेटर बना दूंगा। तो ऐसे अगर मैं करने लगूँ ऐसे ब्लॉक बाय ब्लॉक 10 बाय 10, मैं 10 से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दैट इज नॉट द आइडिया आई टॉक अबाउट लेटर। बट अगर मैं हर एक सेलेक्टेड नंबर ऑफ इंटरवल के साथ अपने लेटर्स ऐसे प्लॉट करना शुरू कर दूँ तो मार्केट ये जहाँ तक गई थी, ये यहाँ तक गई थी तो वहाँ तक ए हुआ, बट ये ए अपने ही उसी टाइम में रिवर्स भी हो गया, वापस नीचे आ गया एंड देन इट ट्राई टू गो डाउन एंड वो ए यहाँ पे फिनिश हुआ एंड देन इट ट्राई टू गो अप एंड ए यहाँ पे फिनिश हुआ। जैसे ही इस पूरे ए में चाहे मार्केट कितने घंटे में, जो हमारा 9:15 से लेकर 9:45 का टाइम है, ये कैंडल 9:15 से 9:45 का टाइम शो कर रही है। तो इस 9:15 से 9:45 पे एक कई बार ऊपर कई बार नीचे और फिर इवेंचुअली वापस ऊपर आकर के यहाँ पे क्लोज हो जाता है, राइट। तो उसकी जो भी मूवमेंट रही है उसका पूरा एरिया इतना ट्रैवल रहा है, तो मुझसे इसका एरिया ट्रैवल मिल जाता है मार्केट प्रोफाइल की ये अल्फ़ाबेट पुट करने से। भले ही आपको ये ना पता चले कि अप और डाउन कितनी बार गया होगा, आपको उसका ओपन क्लोज भी पता चल जाएगा, बट एक अल्फ़ाबेट से हमने उसे डिनोट कर दिया। अब उससे फ़ायदा क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं, बट पहले आपको ये समझ आ गया होगा कि ये हमने हाफ एन आवर के लिए करा है। जैसे ही नेक्स्ट हाफ एन आवर शुरू होगा, दैट मीन्स 9:45 जैसे ही खत्म हुआ और 9:46 शुरू हुआ, मार्केट नेक्स्ट जगह पे प्लॉट कर दीजिए अपना नेक्स्ट कैरेक्टर। लेट्स से इसे मैं बी से प्लेस करता हूँ और बी से यहीं तक जाता है
अगले 10 पॉइंट्स, एंड देन नेक्स्ट बी केम डाउन ओनली, और इससे भी नीचे चला गया तो एक बी मेरा नीचे भी आ गया, राइट। तो जैसे ही ये खत्म हुआ फिर ये वापस ऊपर आया, तो इसने पूरा आधा घंटा सिर्फ इतनी ही जगह पे दिया। तो आपको एक चीज़ पहले देखने को क्या मिली कि फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट ज़्यादा वायलेंटली अप एंड डाउन मूव करी थी, सेकेंड हाफ एन आवर में डायरेक्शनल बायस नहीं मिला, तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने किसी भी तरफ डायरेक्शनल मूव नहीं दिया, ना ऊपर ना नीचे, वो थोड़ा सा साइडवेज होकर के रह गए। दे जस्ट वांटेड टू सी कि मार्केट चाहती क्या, क्या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, हम गैप डाउन खुले क्या ऊपर जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले, तो इसलिए दे जस्ट क्वाइटली सैट डाउन। अब जब ये साइडवेज आप बैठ जाते हैं ना चुपचाप, इस पर्टिकुलर चीज़ को मार्केट की इस टर्म में, मार्केट प्रोफाइल में, इस टर्म को हम कहते हैं इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस मतलब ये एक इनिशियल एक्टिविटी है जिसमें, इनिशियल बैलेंस मैं लिख देता हूँ पहले, दैट इज इनिशियल बैलेंस विच इज द फर्स्ट 1 आवर एक्टिविटी, कि पहले घंटे में मार्केट ने क्या क्या किया है। तो मार्केट ने इस ए के हाई से लेकर इस बी के लो तक की एक एक्टिविटी जो ऊपर नीचे करी है, दैट इज योर 1 आवर इनिशियल बैलेंस। मेक सेंस? अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी के लिए, इसका पॉइंट क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, वो बाद में बात करेंगे, और ये होता क्या है ये भी बाद में बात करेंगे। सिंपल तो वैसे ये है कि ये गैप डाउन हुआ था, तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जो ये गैप डाउन देख करके जिन्होंने शॉर्ट करा होगा उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करना था, बट शायद उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं करा क्योंकि उन्हें पता था मार्केट कल जा शायद और नीचे जाएगी, तो वो उस और नीचे जाने का वेट करते हैं, और जब नीचे आती है तब वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, इसीलिए एक ऊपर का स्पाइक आया, मार्केट ऊपर गई ए में ऊपर। बट क्योंकि ये टोटल डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ था, तो कुछ लोग जो कल, जब ये मार्केट थोड़ा ऊपर थी, गैप अप, यानी जो इस गैप से ऊपर का मार्केट एरिया था वहाँ थी, वहाँ शॉर्ट करना चाहते थे, बट वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, वो अब इनिशियली शॉर्ट करना चाह रहे हैं, और वो एंटर करते हैं मार्केट के ट्रेड में, और इस पूरी चीज़ को नीचे एंटर डाउन में भेज देता है। तो आपको दिखाई देगा कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रेडर्स, शायद जिनको कल एंट्री नहीं मिलती या फिर जिनको कल एंट्री मिली थी बट उन्हें प्रॉफिट बुक नहीं करा था, उनकी एक्टिविटी के हिसाब से फर्स्ट वॉलेंट मूवमेंट होती है, और उसके बाद मार्केट एक इनिशियल बैलेंस में चली जाती है, और वो इनिशियल बैलेंस में डिसाइड करता है कि अब आगे का मूवमेंट क्या है। इस इनिशियल बैलेंस में ज़्यादातर जो छोटा छोटा नुआंस है वो ये है कि अगर नेक्स्ट कैरेक्टर इनिशियल बैलेंस का जो आपको बना है वो रेंज एक्सटेंशन है। रेंज एक्सटेंशन क्या है कि ये जो रेंज बनी है इसका एक्सटेंशन हो जाए, सिंपल वर्ड्स, रेंज एक्सटेंशन नीचे किसी भी तरफ दे दे, इसे हम रेंज एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, इसे हम कंटिन्यूएशन भी कर सकते हैं। तो अगर हमें ए और बी नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हमारा सी थोड़ा और नीचे चला जाएगा तो दे विल हैव द आइडिया कि एवरीथिंग माइट जस्ट गो डाउन, एंड एवरी पुल बैक जो भी मार्केट में ऊपर है उसे हम सेल करेंगे। दैट इज सॉर्ट ऑफ सम पीपल्स थॉट, बट आई वोंट गिव यू दोज आइडियाज, आई जस्ट टेल यू कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर सी कैरेक्टर शुरू होता है आफ्टर हाफ एन आवर, और उस सी कैरेक्टर को अगर हम प्लेस कर दे तो सी हमें यहाँ तक दिखाई दिया, और वो सी कैरेक्टर नीचे तक गया और पुल बैक लेके बंद हुआ। जहाँ पे बंद हुआ उसके हाफ एन आवर बाद डी कैरेक्टर स्टार्ट हुआ, डी कैरेक्टर ऑल द वे स्टार्ट होते नीचे चला गया, और अगर आप देखेंगे तो उसने कोई ऊपर का विक भी नहीं बनाया, क्योंकि उससे कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट पूरा ऊपर टेल छोड़ के आई है, अपने इनिशियल बैलेंस से उसने नीचे की तरफ वो भी दे दिया है रेंज का एक्सटेंशन। तो अब तो हम नीचे ही जाएंगे, और शायद हो सकता है कि लेफ्ट साइड पे कोई एरिया क्लीन होगा और नीचे की तरफ ही कहीं पे कोई सपोर्ट थोड़ा और नीचे होगा, जहाँ पे ये जगह जो होगी शायद कोई सपोर्ट होगा, अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे देखेंगे तो वो बाद में देख सकते हैं ताकि स्ट्रक्चर मिस ना हो जाए। तो इसीलिए वो बड़ी तेज़ी से फिर उस सपोर्ट एरिया की तरफ जाता है कि अच्छा अब हमें पता तो चल ही चुका है ना कि हमारा स्टेशन कहाँ पे है, अगर ट्रेन छूट चुकी है तो लेट्स जस्ट गो, बिकॉज इट्स डेफिनेटली गोना लीव दिस स्टेशन, जो भी ये स्टेशन था, और अब नेक्स्ट स्टेशन की तरफ हम जा रहे हैं, जो भी नेक्स्ट स्टेशन है उसकी तरफ बहुत तेज़ी से मार्केट जाती है। दैट हैपेंस इन द डी। डी में ये हुआ हाफ एन आवर में, और नेक्स्ट हाफ एन आवर में जैसे ही मार्केट यहाँ खुलती है ई में, ये मेरे ख्याल से पहले नीचे गई है या ऊपर गई है, बट मुझे लगता है डेफिनेटली ऊपर की जगह नीचे ही गई होगी पहले, इस कैंडल में पता नहीं चल पा रहा, और ई ऑल द वे वेंट डाउन हियर एंड देन गॉट पुल्ड बैक एज वेल। जैसे कि एक रेफरेंस था कि यहाँ पे एक्टिविटी बहुत शार्प हो सकती है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है किसी का, लेफ्ट साइड से जो आया है कोई सपोर्ट होगा या कोई फिगर होगा, तो जब भी यहाँ पे मार्केट आएगी और कोई इंस्टेंट रिएक्शन आए तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिला, ई जितना नीचे जाने की कोशिश करी उतना ही वापस ऊपर भेज दिया गया, और वो ग्रीन में बंद हुआ, दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर ऐसा हुआ है तो जितना भी पूरा ऊपर का एरिया है और वहाँ पे जो भी सपोर्ट बना होगा मार्केट उसे टेस्ट करने जाएगी। अब क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट के चार्ट कंटिन्यूस नहीं होते, तो उनका तो बेचारों का अपना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बाद मार्केट बंद हो गई, बट नेक्स्ट डे इट एक्चुअली वेंट देयर वेयर टू फाइंड द सपोर्ट हियर, क्योंकि लास्ट टाइम रिजेक्शन यहाँ से मिला था, तो वो उस सपोर्ट के पास जाकर टेस्ट करने गई कि दोबारा रिजेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मार्केट जैसे ही ओपन में पहुंची वहाँ पे टेस्ट करने, उसे रिजेक्शन मिला।
क्योंकि रिजेक्शन मिला तो पूरा दिन आज हमारा बिना किसी पुल बैक के, बिना किसी कंफ्यूजन के नीचे जाता रहा। और जो हमारा पहला सपोर्ट था, वहाँ पे सपोर्ट पे जाके आप कंसोलिडेट कर रहे हो। कोई भी सपोर्ट पे, अगर आपको याद हो हमारा एग्जांपल ऑफ दैट सेल्समैन, आपने जिस सेल्समैन को डांट के भगाया था दूर, जो आपके डोर पे नॉक कर रहा था अनोइंग होकर के, वो आपसे दूर तो चला गया आपके डांटने की वजह से, और अपनी एजेंसी के पास तक चला गया जिस एजेंसी ने उसे भेजा था। बट दैट एजेंसी हैड पुश्ड हिम बैक अगेन to your door again, and when he has come back again to your door in just next day only, and there are chances कि वो शायद स्टिक कर जाए। अगर वो स्टिक कर जाए, चांसेस दैट वो स्टिक कर जाए, चांसेस का मतलब है कि शायद आप ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप उसे वापस भेज दें, वो पता चलने की बात है। लेकिन आप उसे वापस नहीं भेज पाए और आप एंगेज कर गए और वो स्टिक ऑन कर गया, तो देर आर चांसेस कि ये फॉलो थ्रू देते हुए यहाँ से एब्जॉर्ब करके इस डिमांड को नीचे की तरफ चला जाएगा। अब क्योंकि हमारे चार्ट कंटिन्यूस नहीं है, तो जैसा हमें यहाँ पे दिखाई दिया था गैप कि मार्केट ऊपर गई थी इसे टेस्ट करने के लिए, अगर उसके पास टाइम होता तो शायद इसी टाइम पे करती, पर क्योंकि टाइम नहीं था तो अगले दिन करा उसने। सेम तरीके से जब वो इसे एब्जॉर्ब कर रही है इस सप्लाई, इस डिमांड को, तो हो सकता है कि एब्जॉर्ब करने के बाद सीधा फॉलो थ्रू आपको गैप डाउन ले। दैट्स व्हाई इट वाज आवर फर्स्ट सिनेरियो। इफ दैट डज नॉट हैपन एंड मार्केट ओपन्स अप हियर, दैट इज आवर सेकंड सिनेरियो, देन वी गेट टू सी इट्स अ फेलियर ऑफ दैट पर्टिकुलर गाय जो कि यहाँ पे आया। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन के बावजूद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू करा और एक एक लोअर लो बनाने की कोशिश करते हो, फेल हो जाए, आप नीचे तक आओ, यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करो, ऊपर चले जाओ, ऊपर जा करके वापस नीचे गिरो और फेल करो नीचे दोबारा से कोई लोअर लो बनाना, देन देर आर चांसेस देन आप पूरे इस एरिया को कवर करते हुए ऊपर जा करके वापस इस रेजिस्टेंस को जाके टैप करने की कोशिश कर सकते हो। दैट इज द सेकंड सिनेरियो। इन दैट प्रोसेस व्हाट विल हैपन कि आपने बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी इसी एरिया में कर दी, और जब आप ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटी एक ही एरिया में करते हो तो क्या करते हो आप उसमें वॉल्यूम अटैच करते हो। वो वॉल्यूम अटैच हमें दिखाई किससे देगा, मार्केट प्रोफाइल से। तो जो हमने ये अपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ ई, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूँगा ई, यहाँ पे ये हो गया हमारा एफ, दैट इज आर जी, ये हो गया हमारा एच, आई, जे, के नीचे गया, ऊपर वापस ऊपर भेज दिया गया, एल छोटा रह गया, एम लास्ट कैंडल थी तो फिनिश कैसे हो गया। अगर आप देखें तो मैंने इन सबको अल्फ़ाबेट से अगर लिख दिया है, और अगर मैं इन अभी तो आपको थोड़ा क्योस लिखा होगा कि हमने क्या ही लिखा है, लेकिन अगर आप ये कैंडल स्टिक्स अगर हम यहाँ से हटा दें, अगर हम यहाँ से कैंडल स्टिक्स को हटा दें तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट प्रोफाइल चार्ट में अगर हमने इन चीज़ों को ऐसे प्लेस करा होता जैसे कि अभी प्लेस्ड है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा अपना एरिया हल्का सा क्लीन कर ले यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो जो हमने कैंडल स्टिक्स पे देखा था वो अब हम यहाँ पे देख पाए, राइट। जो हम कैंडल स्टिक्स पे देखा था वो अब हम इन अल्फ़ाबेट्स में देख पा रहे हैं। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये है हमारी कैंडल स्टिक्स, और मैं कैंडल स्टिक्स हटा दूँ तो ये है हमारा वो एक्शन, प्राइस एक्शन जो हम अल्फ़ाबेट से देख सकते हैं। अब मार्केट प्रोफाइल क्या करता है कि इस चार्ट को हम बोलते हैं एक स्प्लिट चार्ट, सॉरी, इस चार्ट को हम बोलते हैं एक स्प्लिट चार्ट। मैं ये सिनेरियो भी हटा देता हूँ आपके लिए ताकि कंफ्यूज नहीं हो। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि हम इस चार्ट को बोलते हैं स्प्लिट मार्केट प्रोफाइल चार्ट। ये स्प्लिट हो गया है क्योंकि हर एक आर आपको अलग दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे कंसोलिडेट करूं और इन सब लेटर्स को लेफ्ट साइड में भेज दूं यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर एंड मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ आपको वो प्लॉटिंग दिखा रहा हूँ, ये आपको कभी करना नहीं पड़ेगा मैन्युअली, ये सिर्फ बटन दबाते ही हो जाएगा। बट आई रियली वांटेड टू गो थ्रू द प्रोसेस सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क। मुझे क्या करना है, मुझे सारे अल्फ़ाबेट्स को जस्ट लेफ्ट साइड में कंसोलिडेट कर देना है। इमेजिन कि ये ग्रेविटी है और ये सारी चीज़ें ग्रेविटी में अर्थ की तरफ फॉल करने वाली हैं। तो अगर अर्थ की सरफेस ये है और ये सारी चीज़ें फॉल कर जाएँ एक दूसरे के ऊपर तो वो कैसे आएंगी, ए हमारा यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक है, तो आई जस्ट राइट डाउन ए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and let's say this is 10, 10A, then we got B, जो B है,
जो B है दैट विल फॉल एग्जैक्टली हियर। यहाँ पे A नहीं है तो B A के ठीक साइड में आ जाएगा, और नेक्स्ट B क्योंकि यहाँ पे A है तो इसके ऊपर रखा जाएगा, राइट। This B will come here. I hope this is making sense to you. I'm just shifting them and consolidating them together on top of each other. This is B. Next is C. C goes right on top of B here. C goes here, and C goes actually here, if you see. Right? Make sense? Yes. और क्योंकि C ने रेंज एक्सटेंशन नीचे की तरफ दिया है तो इसीलिए C थोड़ा सा और नीचे भी हमें ड्रॉ करना है। तो C जो ये वाला पॉइंट है ये जाएगा B से नीचे, क्योंकि यहाँ पे B का कैरेक्टर ही नहीं है, और 3 C's हैं जो B से नीचे जा पाएंगे, राइट। D will actually come right next to C, क्योंकि D इससे ऊपर कहीं नहीं है, और आपको दिखाई देगा कि C कैरेक्टर अकेला रह गया। इन कैरेक्टर्स जो ये अकेले रह गए इनको भी हम कुछ बोलते हैं, और इनकी टर्मिनोलॉजी के लिए हम इन्हें बोलेंगे सिंगल प्रिंट। मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको बाद में ध्यान रहेगा। आपको एक टर्म तो याद रहेगी अब कि इसे हम बोलते हैं स्प्लिट चार्ट। हमारा एक है इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस इज द फर्स्ट 1 आवर एक्टिविटी ऑफ कैरेक्टर ए एंड बी। और अभी हमने दूसरी एक टर्म के बारे में इनिशियल बैलेंस बोलते हैं, इनिशियल बैलेंस, ठीक है। इनिशियल बैलेंस जो ज़्यादातर वॉलेटाइल मूवमेंट होती है। और अब ये जो हमारे यहाँ पे जो चार्ट में सिंगल कैरेक्टर्स आ गए हैं, इन सिंगल कैरेक्टर्स को जो सिंगल प्रिंट है इन्हें हम बोलते हैं सिंगल प्रिंट। और यू कैन से LVMs। आपको थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि ये लोएस्ट वॉल्यूम नोड है। यहाँ पे वॉल्यूम अटैच नहीं पाया, एक ही कैरेक्टर आया और वापस मार्केट इससे नीचे चली गई। तो डी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 डीज हैं, तो डी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। ई विल कम हियर। तो आपको पता चलेगा कि डी भी एक सिंगल प्रिंट बन सकते थे, पर बनते बनते थोड़ा सा रह गए। एफ एक इनसाइड बार रही ई के अंदर ही, ठीक है। और एफ हमारा आया यहाँ पर। जी हमारा गया यहाँ पर, जी। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो सॉरी मैं जी यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर्स थे वो अभी ए बी सी के पास थे। ये पहली बार हुआ जैसे जी प्रिंट हुआ कि यहाँ के कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ गए। यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स आ गए, यहाँ पे 3 ही कैरेक्टर थे। तो जब तक ये 3 कैरेक्टर थे तो यहाँ से हमारी एक और टर्मिनोलॉजी निकलेगी जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। जब तक सबसे ज़्यादा कैरेक्टर कहीं पे हैं उस जगह को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द सेकंड थिंग, दिस इज द थर्ड डेफिनेशन, एंड फोर्थ डेफिनेशन इज पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू नो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है और इन पे क्या क्या हमें नुआंसेस इनके साथ जुड़े हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा। ये थर्ड पॉइंट जो था ये सिंगल प्रिंट है हमारे, और ये अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल ABC पे था, पर वो शिफ्ट होकर के DEG यहाँ वाले एरिया में आ गया। तो अगर आप देखेंगे कि पूरी एक्टिविटी ऊपर चल रही थी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जैसा नाम भी बता रहा है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो यहाँ पे था कंट्रोलिंग मूवमेंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अटैच हो रहा था। तो सडनली मूवमेंट इतना तेजी से नीचे गया कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी नीचे शिफ्ट हो गया इस एरिया में, राइट। नाउ अब हमारा जी कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए। जी के बाद आता है एच, तो हम एक एच प्रिंट करेंगे। अगला एच यहाँ आएगा, देयर आर 4 एच, तो एच यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे आई। आई हमने 2 ही बनाए थे, 1 2 3। लेट्स से कि आई यहाँ पे आ गया, एक आई यहाँ पे और एक आई गया डी पे। डी सिंगल प्रिंट बन सकता था बट उसे आई मिल गया यहाँ पे और आई मिल गया एक यहाँ पर, टिल दी एंड, राइट। फिर आता है हमारा जे, फिर आता है हमारा के जो उसी के साथ है, और एक फिर आ गया हमारा नीचे। फिर आता है हमारा एल जो कि ठीक उसके ऊपर है, और हमारे पास 2 एल है। फिर आते हैं हमारे एम जो एक यहाँ पे रहा और एक यहाँ पे रहा। तो अगर आप अब ध्यान से देख पाएँ तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स कहाँ पे हैं, इस जगह पे। तो ये एरिया क्या कहलाएगा, न्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल फॉर द डे। और जब डे खत्म भी हो गया तो POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल अब ये बन गया है। अब आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि एक कंसोलिडेशन हमारा बन चुका है यहाँ पे वॉल्यूम का भी।
जहाँ पे बीच में सिंगल प्रिंट्स हमें मिले, सिंगल प्रिंट्स जो कि सिंगल प्रिंट्स ये थे, और उसके बाद दोबारा से एक हल्का सा कंसोलिडेशन ऑफ वॉल्यूम एरिया, और ये सिंगल प्रिंट्स ऊपर से टेल छोड़ के आ रहे हैं। ये सिंगल प्रिंट्स वो हैं जिन्होंने छोड़ा है एक टेल। ये हमारा फोर्थ टर्मिनोलॉजी हो गया कि टेल। टेल एरिया में सिंगल प्रिंट्स हमें दिखाई देता है। ये टेल वही है जो रिजेक्शन दिखाई देती है, जैसे हमें रिजेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया था, पर यहाँ पे रिजेक्शन जो दिखाई दिया उसमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, मार्केट प्रोफाइल के लिए, वो कहते हैं कि आपके पास दो से ज़्यादा अगर वो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं जो अकेले रह गए तो वो टेल कहलाएंगे। तो ये एरिया भी टेल है और ये एरिया भी टेल है। ये टेल बाइंग साइड भी टेल है कि बाय साइड पे गए ऊपर और सीधा नीचे आपको भेज दिया जाए, तो बायर्स ने टेल पीछे छोड़ दिया अपना। और ये जो है सॉरी, ये सेल साइड टेल है कि सेलर्स नीचे जाते जाते ऊपर से टेल छोड़ के आए, ये बाइंग साइड की टेल है। टेल्स मतलब रिजेक्शन एरिया, जो रिजेक्शन एरिया हमें यहाँ पे शार्प दिखाई दिया था, और जो रिजेक्शन एरिया स्टार्टिंग में शार्प यहाँ दिखाई दिया था। अब आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ अटैच हुआ है, और नेक्स्ट डे की जो एक्टिविटी हुई है वो इसी वॉल्यूम के अराउंड, क्योंकि हम पहली बार ऊपर गए थे। लेट मी जस्ट नाउ पुट ऑन द, आपको ये थोड़ा समझ में आ पा रहा होगा कि मैं वॉल्यूम के इतना यू नो इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप देखेंगे जो आपका कैंडल स्टिक्स हैं वो आपको नहीं बता पाएंगे कि ये वॉल्यूम कहाँ जा रहा था। लेकिन लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू नाइसली। ये थोड़ा सा चार्ट्स ऐसे थे जब हमने ड्रॉ करे थे, यस ऑलमोस्ट राइट। तो ये जो अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसे अगर दोबारा करता हूँ, तो ये है कैंडल स्टिक्स से मार्केट प्रोफाइल चार्ट। ये मार्केट प्रोफाइल का स्प्लिट चार्ट है और ये मार्केट प्रोफाइल का कंसोलिडेटेड चार्ट है। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से देख सकते हैं। अगर आप कैंडल स्टिक्स देखना चाह रहे हैं तो कैंडल स्टिक्स से आपको प्राइस एक्शन दिखाई देगा, और वो प्राइस एक्शन आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको वॉल्यूम का पता कैसे चलेगा? वॉल्यूम का पता आपको तब पता चलेगा जब आपका वहाँ पे मार्केट प्रोफाइल चार्ट इंक्लूडेड होगा। अब हमें यहाँ पे क्या जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम अटैच था, यहाँ पे जो वॉल्यूम अटैच था, अगले दिन का जो पॉइंट था, हमें पता था कि आप एक लोअर 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 हाई बनाते जा रहे, तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि मार्केट गैप अप करके इस पॉइंट के जहाँ से सप्लाई नीचे से जाके टेस्ट करती है, रिजेक्ट हो जाती है, और रिजेक्ट होती है तो किस एरिया के ऊपर जा रही है? इस एरिया के ऊपर। हाँ, ये थ्योरी में क्या फिक्स होता है? ये थ्योरी कहते हैं कि जो ये डबल कंसोलिडेशन आपको बन रही है, हमने पहले एक बार जो बनाया था पिछली वाली क्लासेस में, तो आपको दिखा देगा कि जो ये कंसोलिडेशंस बनते हैं ये यूनिफॉर्म होते हैं और सिंगल सिंगल थे, बट जहाँ पे ये डबल आपको दिखाई दे, दो एच वी एन, इस पॉइंट को हम एच वी एन भी कहते हैं, क्योंकि एच वी एन इज हाई वॉल्यूम नोड। जैसे ये एल वी एन था, सिंगल प्रिंट लो वॉल्यूम नोड था, लो वॉल्यूम नोड। ऐसे ही हमारा एक जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अटैच हुआ हो वो बनाते हैं एच वी एन, विच इज़ हाई वॉल्यूम नोड, हाई वॉल्यूम नोड। ओके, ये जो हमारा हाई वॉल्यूम नोड है, अगर किसी एक ही दिन में आपको दो वॉल्यूम नोड दिखाई दें ऐसे, दैट मीन्स दैट डे इज अबाउट एक्सप्लोरिंग द प्राइस। वो एक्सटेंडेड प्रोफाइल है और उस दिन प्राइस एक्सटेंडेड फॉर्म में नीचे तक जा रहा है, किसी डायरेक्शनल बाइस की तरफ जा रहा है। वो हमारा बैलेंस जोन नहीं है। आपको याद होगा बैलेंस और इम्बैलेंस हम बात कर रहे थे, तो ये इम्बैलेंस जोन था। इम्बैलेंस जोन जिसमें प्राइस अपने आप को फिगर आउट करने के लिए कि कहाँ जा करके मुझे प्राइस में, अगर वो नीचे जा रहा है तो बायर्स मिलेंगे, और अगर ये ऊपर की तरफ होता है तो वो सेलर्स को ढूंढने जा रहा होता है। तो दैट sort of journey of finding something is imbalance and is also visible in market profile chart by two different or three different HVMs sometimes. एंड व्हाट हैपन द नेक्स्ट डे कि जब भी ये आपके इम्बैलेंसेस होता है तो ये बैलेंस से फिल करे जाता है। तो ये वो पर्पस था इसका मार्केट का कि जब ये ऊपर गई तो इसने कुछ वॉल्यूम यहाँ पे ला करके इस एरिया के बीच में फिल कर दिया गया। अब वो वॉल्यूम हम अब जब इसको मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे देखेंगे तो वो वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको ये भी दिखाई देगा कि इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब मार्केट खुली, इसने रिजेक्शन लिया इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से, और इसी एरिया के अंदर, इन दो एच के अंदर मार्केट ने अपना पूरा फर्स्ट 1 आवर 2 आवर 3 आवर इवन 4 आवर निकाल दिया। पर इस एरिया के ऊपर जब आप आके कंसोलिडेट करने लग जाओ और आपकी डायरेक्शन भी नीचे की है, देन this HVM has given up and market goes down. So after filling up this area with some volume and adding that volume to this point here, then market has extended its profile and gone down, and now some volume is also attached that is going to be visible here somewhere when I'm going to consolidate everything together.
So I'll take this off and show you now in market profile charts actually that how will it look like. So every half an hour candle will be one character represented by one character. ठीक है, let's just see that and some of the definition that we have already spoken about, उसमें से कुछ जो चीज़ें हैं उसमें एक दो डेफिनेशन हम अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट पहले देखते हैं कि मार्केट प्रोफाइल चार्ट देखने में अब कैसे लगेंगे। ये मेरा खुद वर्जन था ड्रॉन। अब देखते हैं कि जब आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो कैसा लगेगा। तो इफ़ आई टर्न इट ऑन इट विल बी विजिबल लाइक दिस। Now, in the starting, it will be too much to see, and you'll be like, where do I have to focus? That is the first question that comes to anyone's head, whoever see any sort of chart for the first time. Even when we did not do market profile and we were talking about these charts only, then also these things I guess were too new for you guys, and you were like, यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे करना है। तो अगर हमें ये पता रहे कि आपको किस चीज़ को देखना है, what do you have to focus at, then things are not that much hard. So let me just dissect it again before I'm going to go too much ahead. Let me just point out some of those details जो हमने अभी अपनी ड्राइंग में बात करी। हमने बात करी थी कि अगर ये मार्केट प्रोफाइल 2 दिनों का है हमारे पास, तो हमारे पास जो डेज हैं सॉरी जो हमारे पास डेज हैं वो किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं और कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये हमारा था वो वाला दिन जिसका हमने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था और हमने दो तरह के HVM इस पर देखे थे, राइट। हमने दो वॉल्यूम नोड इसमें देखी थी। तो वो दो वॉल्यूम नोड आपकी यहाँ पे है, एक ये और एक ये। आपको अभी याद आ ही गया होगा जो हमने अपने आप ड्रॉ करा, राइट। और वो वॉल्यूम नोड आपको वॉल्यूम की शेप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। कैरेक्टर्स की शेप में यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि है ये हर एक कैरेक्टर जो होता है इसको हम बोलते हैं TPO, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। एज आई सेड कि आपको सारे डेफिनेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, मतलब ये यूज़ कैसे करनी है। तो इसे कहते हैं TPO, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। ये किसी टेस्ट में एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पता होगा कि ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और जैसे हमने डिस्कस करा था कि ये कितने भी एक पर्टिकुलर नंबर के होंगे, वो नंबर कैसे डिसाइड करना है वो भी हम बात करेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल ये आप रख सकते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो फिक्स रहता है और जो आप हर बार जैसे मार्केट की वॉलेटिलिटी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मार्केट जो होती है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट का जो टिक साइज है यहाँ पे चेंज होने का वो 0.50 है। हर 0.50 के बाद मार्केट चेंज होती है, राइट। और ये जो 0.5 का टिक साइज है मल्टीप्लाई बाय सम नंबर एन नंबर इज गोना गिव यू दैट TPO साइज। Usually this number is actually a ATR, like a average true range of market on a daily chart. अब ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, अभी जल्दी समझना कि ये क्या क्या आ गया। तो मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम TPOs को ड्रॉ करने के लिए कुछ टेक्निकल चार्ट्स की दोबारा से जाएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए जो हमने आज बात करी, हमने देखा कि मार्केट ने ये जो टेल बनाई और एक HVM बनाया और फिर अपना HVM नीचे शिफ्ट करा। उसका जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वहाँ पे एक रेड लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये अगर नहीं दिख रही तो लेट मी एक्सटेंड इट। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, लेट मी जस्ट शो यू दिस वन चार्ट फर्स्ट। तो आपको दिखाई देगा एक रेक्टेंगल ग्रे कलर का, राइट। सॉरी, आपको दिखाई देगा एक ग्रे कलर का रेक्टेंगल और आपको दिखाई देगा एक ग्रीन एरिया जिसमें प्राइस लिखा हुआ है और एक रेड लाइन। तो मैं इन सभी चीज़ों को एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको याद आएगा हमने एक चीज़ और कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम बोलते थे कि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ अटैच हुआ है और जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसमें 70% का जो एरिया होता है वहीं पे ये सारा वॉल्यूम अटैच होता है और बाकी 30% साइड साइड में रह जाता है, राइट। दैट इज़ जो ये 70% एरिया होता है इसी एरिया को हम कहते हैं अपना, जो आपके लिए कहलाया जाएगा। आप इसे हर एक अच्छा लैंग्वेज में इसे अलग अलग नाम दिया जाएगा। कोई इसे फोरक्स कहेगा, कोई इसे HVM कहेगा और कोई इसे इनिशियल बैलेंस जैसा हमने बात करी थी A और B के लिए वो था। तो इसी के बीच में ठीक हमारा एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमने बनाया था, ये जो रेड लाइन से दिखाई दे रहा है कि इसका HVM का ठीक जो पिन पॉइंट है वो HVM से दिखाई देगा। और इसका जो हाई है यहाँ पे वो ग्रीन लाइन से दिखाया जा रहा है और इसी एरिया का जो लो है वो पर्पल लाइन से दिखाया जा रहा है।
तो ये जो एरिया है ये आपका है एक वैल्यू एरिया, और ये जो है ये आपको कहलाएंगे वैल्यू एरिया हाई, ये पॉइंट जो ग्रे रेक्टेंगल का अप है, और ये है इसका वैल्यू एरिया लो, जैसे कि इस लाइन में दिखाई देगा आपको यहाँ पे। और इसका इन्होंने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्राइस भी लिख रखा है। इसका प्राइस है 49,940 पे वैल्यू एरिया लो है, और 50,420 पे वैल्यू एरिया हाई है। और जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसकी भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जो अभी कैंडल की वजह से छुपी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हटा के आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। Let me hide the candlestick so that you can see it clearly, right? अब इस वैल्यू एरिया में क्या है, वैल्यू एरिया का मतलब क्या है कि ये वो वैल्यू है जहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपनी जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट करा है। और वो कंसोलिडेशन और वो जो कंसोलिडेशन है, वो कंसोलिडेशन का जो वैल्यू एरिया है वो आपका अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हमें बस ये देखना है। तो हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो इधर कैरेक्टर्स थे वो बीच में यहाँ पे कहीं पे आए थे, इसीलिए इस एरिया को इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो सेम चीज़ अब इधर वाले दिन के लिए कही जाएगी, और ये वाला दिन का स्ट्रक्चर आपको पिछले दिन से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। और वो क्यों लग रहा होगा अलग, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको पिछले दिन से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अभी दो चीज़ें थी, अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ दो चीज़ें, वन एक कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ चार्ट, दूसरा एक उसका वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम अटैच हुआ है हॉरिजॉन्टली वो दिखा रखा है, और एक ग्रे रेक्टेंगल जो हमारा ये जो बना हुआ है ग्रे रेक्टेंगल, इस ग्रे रेक्टेंगल में एक वॉल्यूम वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया हाई, एक वैल्यू एरिया लो है, और ये जो ग्रे रेक्टेंगल है ये इसका वैल्यू एरिया है। ठीक है, तो अभी आपको इस पूरे दिन में ये चार पांच चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और यहाँ से आपका सेकंड डे स्टार्ट हो रहा है। ये आपका सेकंड डे है, तो इस सेकंड डे में आपको कई सारी तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसमें डेफिनेटली आपको एक ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है जो कि आपका वैल्यू एरिया है, राइट। ये आपका वैल्यू एरिया हाई है, ये आपका वैल्यू एरिया लो है, ये आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैरेक्टर अटैच हुए हैं आज के दिन में, तो वो आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। और यहाँ पे आपका दिन फिनिश हुआ है, ये आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ये वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऊपर शिफ्ट है, दैट मीन्स जो वॉल्यूम यहाँ अटैच हुआ है उससे वॉल्यूम जो दूसरा यहाँ पे अटैच हुआ है थोड़ा सा अप साइड में अटैच हुआ है, तो देयर आर चांसेस की मार्केट अप साइड जा सकती है। और हमने वो रीजन भी डिस्कस कर ही लिए थे कि क्या थी। ठीक है, और अब इसमें जो आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही है वो है कि इसका चार्ट आपको स्प्लिट करके दिख रहा है, कंसोलिडेटेड भी दिख रहा है और वॉल्यूम भी दिख रहा है, बट इसका चार्ट आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड और वॉल्यूम दिखा है। तो आप इसे चेंज करके कभी भी किसी भी चार्ट पे अगर जा करके उसे स्प्लिट करना चाहें तो आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे और इसे कहेंगे स्प्लिट द प्रोफाइल, तो इट विल स्प्लिट द प्रोफाइल एज वेल एंड शो यू, लेट मी जस्ट शो यू वेयर इट इज। आप जाएं यहाँ पे एंड split this volume profile by, yes, not the profile, split the chart. Okay, I think some setting problem, but yes, the idea is कि अभी फिलहाल ये consolidated है, but आप इसके दोनों व्यूज देख सकते हैं, जैसे consolidated और split व्यूज भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस वाले split व्यू को भी कंसोलिडेट करना तो ये भी ड्रॉप डाउन होकर बना जाता है। तो टोटल मिला के ये था हमारा मार्केट प्रोफाइल चार्ट, जो हमें वॉल्यूम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है ये दिखा पाता है, वो भी हॉरिजॉन्टली प्राइस के साथ ही टाइम के साथ में जो वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे हमने वॉल्यूम देख करके बात करी थी कि अगर हमने यहाँ पे बात करी थी कि अगर एक्सटेंडेड प्रोफाइल होता है तो उसका मतलब होता है कि वो प्राइस डिस्कवरी की तरफ जा रहा है। तो प्राइस ऑफकोर्स यहाँ पे डिस्कवरी की तरफ है, यहाँ से क्योंकि एक एक्सटेंडेड प्रोफाइल बना था और उसका वॉल्यूम सारा नीचे अटैच हुआ, वैल्यू एरिया नीचे है। यहाँ पे प्राइस भी ऐसे ही सी वैल्यू एरिया पे जाके कंसोलिडेट करके नीचे गया जरूर, और यहाँ पे क्लोज भी हुआ, बट उसमें सारे का सारा जो वॉल्यूम था उसका ऊपर ही अटैच हुआ। और यहाँ पे भी इसका वैल्यू एरिया जो है इससे ऊपर शिफ्ट हो गया। तो जो वैल्यू एरिया है जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, सॉरी, जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है
वो शिफ्ट ऊपर की तरफ है थोड़ा सा। तो देर आर चांसेस, अगर हमारा फर्स्ट सिनेरियो प्ले नहीं होता है गैप डाउन एंड कंटिन्यू, देर आर चांसेस कि अगर हम इस एरिया में कहीं ओपन होता है और नीचे जाने में रिजेक्ट करते कभी भी एक बार, तो हम ऊपर की जर्नी भी स्टार्ट करके ऊपर की तरफ दोबारा से इस एरिया को फिल करने की कोशिश कर सकते हैं ऊपर। So that is something that we have to see tomorrow, and that's the first small part of, you can say, of market profile. अभी we haven't even spoken about all those details of market profile जो हमने आज टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मार्केट प्रोफाइल आपको दिखता है, हमने डिस्कस ही नहीं करा। आज हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो आपको पहला व्यू दिखाई देता है सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं। So I hope this gonna make some more sense of the markets. And as I said, you don't have to use everything that we are talking about in the markets. You just have to choose whatever you feel good with. All right. So start using these things and start making some sense of the market. Start practicing it on the charts as well. आपको मार्केट प्रोफाइल चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेगा। इसके लिए जो हमारी एक दूसरा टर्मिनल है वो है गो चार्टिंग। आप यहाँ पे अपना एक नॉर्मल अकाउंट खोल करके विद गूगल एंड ऑल, अनपेड अकाउंट विदाउट पेड, आप एक ट्रायल अकाउंट ले सकते हैं इनके साथ, जब प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, क्योंकि ये 1 मंथ का ट्रायल देते हैं आपको। तो जब भी आपको लगता है कि आपके मार्केट प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक हो गए और आप मार्केट के चार्ट्स कंसिडर करना चाहते हैं, then you can use this 1 month trial for go charting and start using market profile charts as well. All right. So with that note, I'll finish this class and I'll see you. I'll send you one more like video link. That won't be a class link, but that would be the link for market profile terminology only. I want you to just go through it later on in your time, and that link I'll be sharing by tomorrow. All right, guys. Chaliye. That link will be by the name of Tuesday only. So this Tuesday class that I'll record right now at night, I'll send you by tomorrow. Then we'll have tomorrow's session at the same time as well. So tomorrow you'll be getting two links, one for the recorded class that I'll record tonight, and one for the session that you'll be having tomorrow with me. Okay? So with that note, let's finish the class here, and good night, people. Take care.